फ्रेंड्स, वेलकम टू डाइट डोज। आज का हमारा टॉपिक है विच कुकिंग ऑयल इज द बेस्ट कुकिंग ऑयल। सबके दिमाग में एक ही क्वेश्चन होता है, विच इज द बेस्ट। बेस्ट क्या है? बेस्ट कुकिंग ऑयल की हम बात करेंगे। उससे पहले हम बात करेंगे कि ऑयल के बारे में, कि ऑयल सिलेक्शन हम लोग कहाँ से करते हैं। हमारे इंडिया में यूजुअली जो ऑयल सिलेक्शन है दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन रीजन एंड कल्चर, विच रीजन यू आर कमिंग फ्रॉम। इफ यू आर कमिंग फ्रॉम केरला और साउथ, मोस्टली का कुकिंग गोज इन कोकोनट ऑयल। इफ यू आर कमिंग फ्रॉम आंध्र प्रदेश और राजस्थान, then you will consider sesame oil. If you are coming from central India and Gujarat, you will prefer groundnut oil. If you are coming from east and north side, then mustard oil is a must. So India में हमारा जो oil selection है that is based on which region you are coming from. Locally वहाँ पे क्या available है, and that is actually good. We should consider the local grown, locally available oils. But अगर health की बात करते हैं तो इनमें से हमें कैसे select करना है कि which oil is the best oil, because market is flooded with different worldwide available fats and oils, mustard oil, safflower oil, sunflower oil, olive oil, canola oil, palm oil and n number of other oils. So that we will discuss कि हमें choose कैसे करना है which is the best oil. If you ask me कि which is the best oil, sorry to disappoint you, there is no best oil. We have to choose, we have to use a combination of different oils to maintain good health. NIN recommends आइडियल फैट उन्होंने बताया है कि देर इज अ रेशियो विच हैज टू बी मेंटेन। किसका रेशियो? ओमेगा 3 ओमेगा 6 का रेशियो एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स एंड सैचुरेटेड फैट्स का रेशियो। अब ये सब चीजें क्या है ये मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी हैं, यू कैन रीड इट फ्रॉम देयर। सो अगर कोई भी ऑयल, कोई भी फैट, ये रेशियो जो उन्होंने रिकमेंड करा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने, कि अगर कोई भी ऑयल ये रेशियो मेंटेन कर रहा है देन दैट ऑयल कैन बी कंसिडर्ड एज अ आइडियल फैट। बट कोई भी ऑयल ऐसा नहीं है जिसमें ये परफेक्ट मात्रा में, परफेक्ट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं। सो वी हैव टू यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑयल टू अचीव दैट रेशियो as recommended by National Institute of Nutrition. What is that perfect ratio? How we choose it? Where they have given different oils like groundnut oil. You have to choose one from the given option: groundnut oil, sesame oil and rice bran oil. इनमें से कोई भी एक तेल, because they are rich in omega 6 fats. And along with this, another oil that we have to keep in our kitchen is mustard oil or soybean oil. इन दोनों में से कोई एक, mustard oil और soybean oil, because these are the only two oils जिसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर एसेंशियल फैटी एसिड्स, ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6। इनको एसेंशियल फैटी एसिड्स इसलिए बोलते हैं बिकॉज आवर बॉडी कैन नॉट प्रोड्यूस इट, वी हैव टू टेक इट फ्रॉम द आउटसाइड सोर्सेज। तो ओमेगा 3 ओमेगा 6 का एक रेशियो मेंटेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो एज रिकमेंडेड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, यू कैन चूज फ्रॉम ईदर राइस ब्रान ऑयल, सेसमे ऑयल और ग्राउंडनट ऑयल, वन ऑयल फ्रॉम दिस, एंड मस्टर्ड ऑयल एंड सोयाबीन ऑयल में से एक ऑयल। तो हमारी किचन में दो ऑयल एट अ टाइम प्रेजेंट होंगे। यू कैन रोटेट देम, you can use them, like after 3 months you can change your oil. Now what about ghee? Ghee again, that was considered as a villain in previous कुछ time में ghee was the villain in heart diseases and weight watchers में जो weight loss करना चाहते थे उनको ghee ban कर दिया जाता था। And now this is again making a comeback. Ghee is now making a comeback in health sector because studies have proven that all saturated fats are not bad. Ghee is a saturated fat और saturated fat का नाम सुनते ही सबके दिमाग में आता है heart diseases। तो ghee is not bad, but the quantity in which you have to take, again you have to watch that, you have to consult a dietitian for that कि कितनी quantity में हमें लेना है। But 1 teaspoon per person per day is safe to be taken in the saturated fats के budget में। Now why ghee is good? क्या benefits हैं ghee के? Ghee is rich in conjugated linoleic acid. It is CLA, it is also known as CLA. इसके बहुत सारे health benefits हैं। It is good for your skin, good for your hair, good for your eyes, good for your brain development and cell growth. That is why children में और pregnancy में घी खिलाया जाता है ज़्यादा, because it is good for that brain development and cell growth. It can improve your insulin levels. It can also improve your blood pressure levels. So there are many benefits of ghee. So you can safely take ghee. So now we know that which oil to choose from. But market में जब हम shopping करने जाएंगे oil की, तो हमें और भी बहुत सारी terms है जो सुनने को मिलती है: cold pressed oil, refined
ऑयल, वर्जिन ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल, ये सब क्या है, दैट ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो स्टार्टिंग फ्रॉम रिफाइंड ऑयल वर्सेज कोल्ड प्रेस्ड ऑयल. नाउ रिफाइंड ऑयल खरीदें कि कोल्ड प्रेस्ड ऑयल खरीदें, पहले होता क्या है, रिफाइंड ऑयल इज बेसिकली ऑयल विच इज एक्सट्रैक्टेड एट हाई टेम्परेचर. हीट का यूज किया जाता है, हीट के साथ साथ उसमें केमिकल्स यूज किए जाते हैं उसको सुंदर बनाने के लिए, उसको ब्यूटीफुल बनाने के लिए. तो एंड रिजल्ट क्या होता है, केमिकली ट्रीटेड ऑयल हीट के साथ में मिलके ऑयल के अंदर जो न्यूट्रिशन था दैट इज फिनिश्ड, देयर इज नो न्यूट्रिएंट लेफ्ट. अपार्ट फ्रॉम दैट द ऑयल इज ओडरलेस, टेस्टलेस, इट लुक्स बेटर बिकॉज इट इज ब्यूटीफुल, इट इज केमिकली treated. But cold pressed oils are different. Cold pressed oils are the traditional method of extracting oil. जैसे हम बात करें, एग्जांपल देती हूँ मैं, जैसे कि मैनुअली हम जूसर में से जूस एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उसी तरह से मैनुअली जब हम ट्रेडिशनली कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स को, जैसे कोल्ड प्रेस्ड ऑयल को कच्ची घानी का तेल जो हमने सुना होगा यूजुअली यूज होता है, दैट इज कोल्ड प्रेस्ड ऑयल. तो वो कैसे निकाला जाता था ऑयल, सीड्स वर बीइंग क्रश्ड बाय यूजिंग मैनुअल प्रोसीजर. So there is no heat that is being used. Best quality seeds had to be put क्योंकि तभी अच्छा ऑयल निकलेगा. And the end product used to be aromatic, more tasty, बहुत ज़्यादा खुशबू वाला, but इतना सुंदर नहीं होता दिखने में. But उसके जो nutrients हैं they retain in that oil. So they are rich in antioxidants. They have vitamin E. So cold pressed oils are always healthier option to choose from. They are a little expensive as compared to the refined oil, but they are more nutritionally they are better, they are healthier. तो अगर आप चूज कर सकते हैं, आपके पास में ऑप्शन है, आपका बजट अलाउ करता है, पॉकेट अलाउ करती है, तो ऑलवेज चूज कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स. दे आर अ लिटिल एक्सपेंसिव बट दे आर डेफिनेटली अ गुड ऑप्शन. दे शुड बी चोजन फॉर गुड हेल्थ. Now what about olive oil? Olive oil is the trendiest oil भाई, उसको कैसे भूल सकते हैं, वो तो आजकल हर एक बंदे को पता है कि olive oil. It is not Italian जो खाना होता है usually that is being cooked in olive oil. That is a healthier oil, no doubt. It is rich in monounsaturated fatty acids and it has antioxidants. But उसके साथ साथ एक और टर्म यूज होती है virgin, extra virgin olive oil, virgin olive oil. ये सब क्या है, तो जब हम olive oil परचेज कर रहे हैं, पहली बात तो olive oil again is a little expensive. If your budget allows you can take that, and also it doesn't fit well with the Indian cuisine. लेकिन जब आप salad dressings में डाल रहे हो उसको, या फिर आप इटालियन खाना खा रहे हो, उसमें it can taste good. Indian cuisines के साथ थोड़ा सा mismatch हो जाता है. So olive oil again is not a best oil. ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही ऑयल खाना है, उसी खाने में उसी ऑयल के बना हुआ खाना खाना है. Again it can be used in combination of the with the other oils जो हमने पीछे बात करी थी. तो ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल क्या है, एक्स्ट्रा वर्जिन इज सी, जैसे हम कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स की अभी हमने बात करी कि सीड्स आर बीइंग फेड, इसमें ऑलिव्स आर बीइंग फेड इनटू दैट into the crushing machine, the grinding machine. उसमें जो फर्स्ट लॉट में से ऑयल निकलता है दैट इज एक्स्ट्रा वर्जिन. और इसके अलावा रिफाइंड ऑलिव ऑयल भी होता है. रिफाइंड ऑलिव ऑयल, जब रिफाइंड नाम आ गया तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इज केमिकली ट्रीटेड एंड हीट ट्रीटेड, सो दैट इज नॉट अ हेल्थियर ऑप्शन. लेकिन अगर आप बात करोगे कि ऑलिव ऑयल में कुकिंग करनी है कि नहीं करनी, तो आई वुड सजेस्ट इफ यू आर टेकिंग एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल देन इट वुड बी बैड टू कुक इन दैट, बिकॉज अगेन वो हीट सेंसिटिव होता है. जैसे ही आप उसको हीट करोगे, उसकी जो एंटीऑक्सीडेंट्स जिसके लिए हमने उसे खरीदा है इतना महंगा, एंटीऑक्सीडेंट्स जो उसके अंदर प्रेजेंट है वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. सो देयर इज नो सेंस ऑफ हीटिंग इट. डोंट कुक विद ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल. इफ यू आर यूजिंग द अदर वेराइटीज देन यू कैन यूज फॉर कुकिंग, बट एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल should not be used for cooking in my opinion. It can be taken in salad dressings or it can be used just like that. That's it for today.